Hello everyone, welcome back. So what we are doing 5 kingdom classification which is given by R.H. Whittaker. So in previous video we have discussed this table and know that what are the general characters that Mendel has taken into consideration to divide or to classify these organisms into different groups. As we know that he has classified organisms into 5 groups, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, including these characters. Now we will start from the kingdom Monera. So here you can see some of the figures or structure of some bacteria from where you can predict that which kind of organism is being included in kingdom Monera. So let us study first characters of this Monera kingdom. So in Monera, what are the most important members of this kingdom Monera? They are the bacteria. Okay, bacteria are the most important members of this kingdom Monera. Now they are prokaryotes. Prokaryotes means they don't have a well-defined nucleus. Okay, and they also lack membrane-bound organelles. Right? Now here is a example. It includes bacteria such as blue-green algae. Here you can see in the picture that this is a picture of a blue-green algae. If you might have seen, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी अगर पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है, वो कई दिनों तक पड़े रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर की कुछ जो है वो पूरा कवर कर लेती है वाटर को. So that green color thing that we see is blue-green algae. उसे हम blue-green algae कहते हैं. Now let us see next point. They can be present, वो extreme habitat में भी रह सकते हैं. For example, if that is a hot spring. Hot spring क्या होता है हम जानते हैं that this is a habitat where the temperature is so high. Okay. Next is desert, snow, as well as they can also live in deep oceans. वो बहुत ही ज़्यादा गहरे समुद्र में भी रह सकते हैं. So they have that capacity to live. वो कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं. Now, what is the next point? That they can also act as a parasite. वो parasite की तरह भी रह सकते हैं. Parasite क्या होता है? हमें मालूम है that parasite वो organism होता है जो किसी भी host की body पर रहता है. Okay, it needs a host to survive. Now, see, the next is that all monerans are prokaryotes. में जितनी भी monerans हैं या जितने भी organism जो मोनेरा किंगडम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, they are prokaryotes. वो क्या होते हैं? They are prokaryotes. Next is कि प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है. हमें मालूम है दैट प्रोकैरियोट्स में जो है वो ट्रू न्यूक्लियाई नहीं होता है, यानी कि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो ट्रू नहीं है. उनकी जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रहती है. दैट कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है. हमें मालूम है कि ये प्रोकैरियोट के कैरेक्टर्स हैं. दैट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. Now, what is the next point? Next point is that they can be autotrophs, heterotrophs as well as parasitic. Means वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं. ठीक है. Heterotrophs में जो खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. And in the case of parasite, this also parasite are also that they live in a host body to survive, and they take or they feed on them only. Now, what is the next character? That they do not have cell wall. उनके पास cell wall नहीं होता. They respire through aerobic and anaerobic. Means वो ऑक्सीजन भी लेते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं. Means with oxygen, with the presence of oxygen or without the presence of oxygen. Now, the next one is the movement occurs through flagella. उनके पास flagella एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला. एंड फ्लैजिला का क्या काम होता है? दैट दे हेल्प इन अ लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. राइट. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस अकर बाय डिफ्यूजन. अब क्या होता है? वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने न्यूट्रिएंट्स या गैसेस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं बाय द एनवायरमेंट. सो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ लोअर और फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मोनोरेंस के कैटेगरीज को देखा है कि मोनोरेंस किसके अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स में डिवाइड है। सो उनके शेप्स के अकॉर्डिंग इन्हें कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में। नंबर वन इज स्फेरिकल और कॉकस, नंबर 2 इज रॉड शेप्ड, ओके, और उन्हें हम क्या कहते हैं, बैसिलस। नंबर 3 इज आर कॉमा शेप्ड, ओके, इन बायोलॉजिकल टर्म वी कॉल देम विब्रियम, एंड द फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप, ठीक है, ये स्पाइरल शेप का होता है जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, स्पाइरलम। Now let us see a brief structure of this bacteria. Seen that this is a capsule, okay, the outermost covering of that bacteria is called capsule. Now it have a cell wall, plasma membrane, nucleoid, this DNA which is present in a cytoplasm, that is called as nucleoid. This is cytoplasm, and we have this ribosomes, and this is a flagella which is used for locomotion, okay, or movement. Now one more thing, that this bacteria have a pilus, and this pilus helps in a conjugation of bacteria. Now let us see that in how many groups these monoreins have been divided. So these monoreins have been divided into 2 groups, that is Eubacteria and Archaebacteria. Now let us see in Eubacteria, that U means true, means these bacteria are being called as a true bacteria. So now these bacteria also are of 2 types, that are heterotrophic bacteria and autotrophic bacteria. In autotrophic bacteria there are again 2 divisions, that is chemoautotrophs and photoautotrophs. We will study one by one. Now let us come to Archaebacteria. So in Archaebacteria there are 3 divisions. Number 1 is halophile, that is those who live in salty area. Number 2 is thermoacidophiles who can live in hot springs, and the number 3 are methanogens. Methanogens are the bacteria or organisms which can live in marshy area. Marshy means daldal. Let us see characters of Archaebacteria. So Archaebacteria can be thermophiles, हमने देखा वो hot spring में रह सकते हैं. They can be halophiles, वो बहुत ही ज़्यादा salty concentration वाले एरिया में भी रह सकते हैं जहाँ पर जो salt का concentration है वो बहुत ज़्यादा है. And the next one is our methanogens. हमें मालूम है methanogens हमारे कहाँ मिलते हैं, marshy areas में. So these are the 3 groups of Archaebacteria. Now their structure of cell wall is different from other moneras. Now cell wall की जो structure है, जो बाकी monerans की, Archaebacteria के cell wall की जो structure है वो बाकी monerans से अलग होती है, right? The cell wall is different. So now let us see the next point, that is methanogens are being found in gut of ruminant animals such as buffaloes and cows. ये cows और buffaloes के gut में यानी कि stomach में पाए जाते हैं. Now let us see some of the examples of this methanogens. So number 1 is Methanocercina burkeri, okay. Second is Methanobacterium thermoautotrophicum, and the last one is Methanobacterium wolffi. So these are the 3 examples of methanogens. Now next is that this helps in a production of biogas. ठीक है, मिथेनोजेंस का क्या काम है, दैट वो बायोगैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. एंड कहाँ से, फ्रॉम द डंग ऑफ अ एनिमल, एनिमल्स के जो गोबर होते हैं वो उनसे बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, करेक्ट. नाउ लेट अस सी द यूबैक्टीरिया. अब हमारे क्या आ गया, हमारा सेकंड आ गया, हमने आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीट किया. नाउ वी विल सी आवर यूबैक्टीरिया. सो दे आर रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया बाय, क्योंकि उनके पास एक मोटाइल फ्लैजुलम होता है, एंड दे आल्सो हैव अ रिजिड सेल वॉल, जो उन्हें एक ट्रू बैक्टीरिया के कैरेक्टर में डालता है, करेक्ट.
नाउ नेक्स्ट इज दैट इनमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, इनमें हमारे साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लियर, जिसका पिक्चर मैंने इसके पहले कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाया है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बिल्कुल प्लांट्स की तरह ही क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। बिकॉज क्योंकि ये अपना खाना जो है वो अपना फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, therefore they are called as photosynthetic autotroph. Now next is that the cyanobacteria जो जिसे हम क्या कहते हैं, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कैसे हैं होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर यानी कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ओके, एंड दे आर फिलामेंटस एल्गी means they can made a filament like structure ऐसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, दैट दे हैव कॉलोनीज, दे फॉर्म कॉलोनीज। वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। एज बिकॉज वो यूनिसेलुलर होते हैं बट वो एक साथ आकर क्या करते हैं, कॉलोनीज की तरह इकट्ठे एक ग्रुप में रहते हैं। नाउ व्हाट हैपन, दे फॉर्म कॉलोनीज। हमारे जो यू बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें मालूम है दैट दे आर सिंगल सेल but these cells combine to each other and they form like a colony, and these bacteria have been surrounded by a gelatinous sheath. Now what we are seeing next, that they form a colonies. वो क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं which are surrounded by a gelatinous sheath. So let us see here with the, suppose this is a, as we know that eubacteria or cyanobacteria are single cellular, right? So many of the single cellular cyanobacteria will come together and they will form a colony like this, clear, and these cells is being surrounded by a gelatinous sheath, ठीक है। अब gelatinous sheath का क्या काम होता है कि वो इनको बाउंड करके रखता है, ओके, that gelatinous sheath help them to bound to each other, उन्हें एक साथ रखने में हेल्प करता है। Now next is that some have a specialized structure जिनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट का क्या काम है, that it help in a nitrogen fixation, it helps, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, हेट्रोसिस्ट। Now let us see some example of this eubacteria or true bacteria is that nostoc and Anabaena। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे nostoc का क्या दिया है, फिगर लगाया हुआ है। हम इधर देख लेते हैं, नंबर 1 दिस इज अ वेजिटेटिव सेल हो गया हमारा, ठीक, जो वेजिटेटिव सेल यानी कि क्या, ये न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। नाउ दिस इज आवर हेटेरोसिस्ट, ओके, हेटेरोसिस्ट का क्या काम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। नाउ सी दिस इज अ म्यूसिलेजिनस शीथ, जो कि इसमें उतना क्लियरली नहीं विजिबल है, बट म्यूसिलेजिनस शीथ का क्या काम होता है कि ये सभी कॉलोनीज को, सभी जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक साथ रखने में, एक साथ बाउंड करके रखने में हेल्प करता है। Now let us see the next point. Next point क्या है, there are certain bacteria that can oxidize certain inorganic substance, जैसे क्या हो गए, नाइट्राइट्स हो गया हमारा, नाइट्रेट्स हो गया, और उन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। मीन्स वो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अपना जो एनर्जी है उसको लेते हैं। Now what is the next is that दे आर ऑल्सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मीन्स वो कुछ ऐसे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं जिसके थ्रू वो अपना एटीपी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ओके, एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, दैट बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ फिजन, दैट इज बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, हमने पहले इसके पढ़ा हुआ है। नाउ दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है देन क्या होता है, दे जस्ट बर्स्ट आउट एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज दैट हमने पढ़ा है दैट माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। तो पीपीएलओ क्या है हमारा एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको हम जानते हैं दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एवर नोन। सो उसे हम क्या कहते हैं माइकोप्लाज्मा। नाउ नेक्स्ट इज दैट दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है हमें मालूम है उनके पास सेल वॉल नहीं होता है एंड दे रेस्पायर एनारोबिकली। नाउ हियर दैट आई टोल्ड मैंने अभी क्या बताया कि वो जो है दैट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन, क्या उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। Here are some summary about this eubacteria. Thank you and stay connected.